From yesterday onwards, we have started the core philosophy of naturopathy. आखिर what is the core concept behind the healing practice of natural healing? Why, when we think about naturopathy, the only thing that comes to our mind is, I don't know, might be fasting or might be having on a certain diet, but anything that you see in the market जो कि बाजार में आयुर्वेदा पंचकर्म या इन सभी के नाम पे जो भी अवेलेबल है, so everything is now part of your this natural healing technique or the naturopathy, I would say. So yesterday we have understood about the 5 basic components, how imbalances between these 5 components give rise to different diseases. There are 2 conditions. In one condition, like one quality like the Agni might become more, okay, and the other way of looking into it, when the Agni becomes less than the desired level. So when we have tried to understand the basic understanding of all these 5 basic constituents or the Panchatattvas. Now moving ahead, we have little bit spoke about how we can get them. इन पंच तत्वों को हम कैसे अपने शरीर में लाएंगे. जैसे अग्नि तत्व को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, है ना? जल तत्व को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, पृथ्वी तत्व को संतुलित करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो क्या अलग अलग तरीके हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमने बात किया था. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर दैट वाज द माइंडसेट. व्हेन यू गेट इनटू द हैंड्स ऑफ a natural healer, one thing is very important. जैसे सुबह सुबह when we start our yoga session, what we do, पहले हम प्रेयर करते हैं, अस्तोमा सदगमया, सद्बुद्धि दे हमें, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो. So we ask for a divine guidance. Then we do this mantrocharan, this Mahamrityunjay mantra. Now Mahamrityunjay mantra has this ability to create a positive energy around. That's one of the reasons that in Indian, I would say, astrology hai, mythology or tantra shastra hai, anyone who has these malefic effects, we call it as हम लोग क्या कहते हैं उसे, markers, someone who has a danger on his life, वैसी स्थिति में महामृत्युंजय मंत्र या लघु मृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है. So what I'm saying is कि all these practices basically not only helps on the physical level but even on the metaphysical level. These make changes, so by which the mentality or the emotional balance जो है आपका, वो ज्यादा संतुलित होता है, एक सकारात्मक सोच निकल के आती है. So until and unless you are in a depressed state or someone comes in and he gives you some courage, he explains you about the situation and try to give you a different perspective, and suddenly you feel कि आपका पूरा concept change हो जाता है and you start feeling very positive. So a positive mindset बहुत ज्यादा important है. और सबसे बड़ी चीज है जो है surrender. Surrender to the process, to the procedure, or to the science to whom you have came for refuge. This is of profound importance, by the way, especially to a science that is not, I would say, pretty much, जो कि एलोपैथिक की तरह बहुत ज्यादा क्वांटिटेटिव अप्रोच अब रखने लग गया है, बट earlier there has not been so much of data available. More experiential level facts are available, right? But not on the quantitative level till now. Now, after the mindset, the next important thing is your suniyojit जीवन क्रम. So a balanced life, or I would say a disciplined life. Now, ये क्या कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड निश्चित क्रम से गतिशील है और सभी के भीतर प्रकृति का ताल या लय वो एक निश्चित क्रम में है, और यही अनियमितता ब्रह्मांड से प्रकृति शरीर हमें दिखाई पड़ती है. Now, so what it says that कि there is a divine balance, and this balance could be
no, felt in terms of this existence that we have. So जो हमारा microcosm है and macrocosm है, everything is moving. Everything is moving. And when things stops moving, if we see on the quantum level, if everything stops moving inside, then that's a problem with us. Or anything that starts moving in the wrong way, like in case of diseases where or any mental disorder or paralysis hai, or anxiety attacks or something, what happens? That your body is supposed to work, or basically I would say expand, or grow in a specific way. Okay, and to make this happen, there is a, I would say a specific cycle that follows, especially the moment you grow. जैसे आप पैदा होते हैं, उसके बाद क्या है, ग्रोथ हार्मोन्स एक स्पेसिफिक रफ्तार में बढ़ते हैं. कुछ कुछ ग्रोथ हार्मोन्स हैं जो बच्चों में बहुत बढ़ते हैं, मगर बड़ों पे होने पे वो बंद हो जाता है ना. और कुछ कुछ ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम पे ही वो रिलीज होते हैं, जिससे कि बॉडी में फिजिकल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं between a male and a female specifically. Okay, so it says that starting from being into the childhood or moving into the Kishoravastha, Yuvavastha, and the Prauravastha, all these stages, when someone goes through, there is a flow of energy that is supposed to happen at a specific time frame. If that doesn't happen, then also that's a problem. So it says, now to let that happen, क्या क्या जरूरी है? ब्लड फ्लो, रक्त संचार प्रक्रिया ठीक से हो, पेशियों का आकुंचन प्रकुंचन. नाउ पेशियों का मीन्स जो हमारे इंटरनल मस्कुलर ऑर्गन्स हैं, उनका we call it as peristalsis. This is like, they get squeezed in and squeeze out, and they relax. This is like if you have a balloon in your hand जो पानी से भरा हो, जैसे होली में होता है. So Akunchan is when this gets squeezed in. So the water is basically spread towards right and the left, all the direction. And Prakunchan is when it's released, then suddenly the fluid comes back to its place with a much more greater force. Okay, that's why all the fluid in my body or the fecal matters are passed on from abdomen to the smaller intestine, and from small intestine to the large intestine, and then followed to the rectum. So it says contraction of specific muscles, then swas prashwas. So the rhythm of your breathing, all these only happens because we have a specific flow, or we have a specific rhythm. हमारे जीवन में एक लय है, और उस लय के हिसाब से चीजें होती हैं, इसलिए हमारा अस्तित्व संभव है अगर हम करें. सो इट सेज दैट जैसे दिल है, दिल की जो धड़कन है, इसकी जो आवाज है ड्रप ड्रप जो होती है, यही बेसिकली क्या है, ये जीवन का प्रमाण है. और अगर ये नहीं हो तो संचालन जो है ठीक से नहीं होगा. यही ताल क्षण में व्यक्ति को, अगर किसी में यही अगर बहुत तेजी से होने लग जाए तो क्या होगा? If this happens to anyone specifically, then what will happen? तो आपने लो बीपी की शिकायत देखी होगी, घबराहट की शिकायत देखी होगी, ये सभी चीजें होनी शुरू हो जाती. तो इस तरह से कहने का अर्थ ये है कि हमारे भोजन ग्रहण करने से लेके सोने में, किसी भी कार्य को करने में, हर चीज में, और क्या खा रहे हैं, पाचन में, हर चीज में एक नियमितता होनी चाहिए. देयर हैज टू बी अ वे ऑफ डूइंग इट, अ स्पेसिफिक टाइम एंड स्पेसिफिक प्लेस पे अलग तरह से होना चाहिए. ठीक है, और ये लय हमेशा बना होना चाहिए. अगर इस प्रोटोकॉल को हम अवॉइड कर देंगे तो हमारे लिए बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस द नेक्स्ट इज श्वास प्रश्वास का क्रम. यानी देयर हैज टू बी अ पैटर्न इन
with the inhalation and exhalation. ये कहता है as per the recent studies those have been done, it says कि हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं उन सब का इन पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और श्वास लेने का जो हमारा तरीका है उसके आधार पर हमारे स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है। एक रिलैक्स ब्रीदिंग जो है ये बॉडी माइंड बॉडी का जो कनेक्शन है उसको रेगुलेट करने के साथ साथ बहुत सारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक जो रिस्पॉन्सेज हैं उनके बीच में बैलेंस बना के चलता है। अब इससे क्या होता है, इससे चीजों को कंट्रोल करने में, उनको अच्छे से मैनेज करने में हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, पूरा का पूरा चैनल्स हैं, उसको बेसिकली काफी मदद मिलती है। एक छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे आप कभी वॉक करते हैं या कभी रनिंग कर लेते हैं तो आपकी श्वास तेज हो जाती है। तो श्वास अगर तेज है तो आपके बॉडी में ठंडी ठंडी हवा तो महसूस नहीं होगी, यू विल स्वेट, गर्मी आएगी। तो अगर किसी की श्वास अगर बढ़ जाए और हमेशा बढ़ी हुई रहेगी तो इट मीन्स कि वो आदमी हमेशा, उसके शरीर में ताप बना रहेगा, उसके शरीर से हमेशा पसीना आता रहेगा, अंदर से उसकी बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती रहेगी, लेकिन तो कहा गया कि इन सभी चीजों को अगर हम देखें तो ये जो हमारा क्रम है श्वास प्रश्वास का, इसको अगर हम रेगुलेट कर ले तो भी हम अपने बॉडी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे कहते हैं कि यही प्राणायाम है। प्राणायाम में क्या कह रहे हैं कि बेसिकली प्राणायाम, अलग अलग तरह के प्राणायाम से हम इसी तंत्र के, बॉडी का ये जो मेरा सिस्टम है, इसी पर कंट्रोल स्टैब्लिश करते हैं, इसी पर नियंत्रण करते हैं। और इन्हीं सिस्टम से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, इन सभी पर जैसे जैसे कंट्रोल आता है माइंड और बॉडी के बीच में, तो बहुत सारे ऐसे जो काम है, जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक रिस्पॉन्सेज हैं, वो अपने आप होने लग जाते हैं। जैसे कि प्रॉपर सिक्रेशन ऑफ योर हार्मोन्स, चयापचय, चयापचय मीन्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एलिमिनेशन, सो दैट वो अपने आप के नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें तो हाई बीपी जो है क्या है, इट इज अ सिचुएशन वेयर द रिदम ऑफ ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट हैज बीन आउट ऑफ ऑर्डर। और ये क्यों है? क्योंकि बॉडी जो को आदत लग गई है हमेशा तनाव में रहने की, उसी के कारण होना शुरू हो गया। और यही अगर ज्यादा समय तक रहेगा तो क्या होगा, दिल की बीमारी हो जाएगी। अच्छा, दिल गया तो उसके बाद क्या होगा, या तो शुगर होगा या ब्रेन हेमरेज होगा, दोनों में से कोई एक होगा। और अगर शुगर हो गया तो उसके बाद क्या होगा, किडनी चला जाएगा, और किडनी गया तो लास्ट में फेफड़े चले जाएंगे, एंड देन यू आर डेड। ओके, सो हाउ अ स्मॉल चेंज एंड दैट बेसिकली ट्रिगर्स वन रिएक्शन जो कि पूरे के पूरे प्रोसेस को बदल देता है। नाउ मेरा ये कहने का कतई मतलब नहीं था यहाँ पर कि एक छोटा सा चेंज बॉडी में जो है, आई मीन दैट विल मेक यू यू नो टुवर्ड्स योर डेथ बैड बेसिकली। मेरा कहने का मतलब ये था, इन द सेम वे इफ यू मेक चेंज इन योरसेल्फ, अगर आप अपने इसमें चेंज थोड़ा सा भी करते हैं तो ये आपको उसी गति से जो है जीवन धारा से जोड़ भी देगा। ओके, सो लेट मी गिव एन एग्जांपल. This was about, I don't know which team we were talking about, the French team or someone, जो तो साइकिलिंग के जो टूर्नामेंट्स होते थे, टूर डी फ्रांस का था या कहाँ का था, सो बेसिकली दे डिड रिसर्च दैट व्हाई हमारी जो कंट्री है वो मेडल्स नहीं जीतती. ओके, देन दे what they start doing is they start looking for all the options कि हम कैसे मेडल जीते, and they did lot of research in terms of कि क्या है नहीं है everything. So first they look for the concrete knowledge part कि what kind of skills or skill sets that our cyclists don't have, तो उनको उसके बारे में बताया गया. ठीक है, उन सब के बारे में ट्रेनिंग दिया गया, छोटी छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया गया कि साइकिलिंग के पहले जो साइकिलर्स हैं, आर दे गेटिंग अ डीप स्लीप और नॉट. डीप स्लीप लेने के लिए क्या वो किस तरह का खाना खा रहे हैं, किस तरह की कंजम्पशन हो रहा है, आर दे any way associated to those anything
that allows them to have a relaxed mind or not. उनके सोने के लिए तकिए का साइज कैसा होगा, उनका जो बेड है वो कितना थिक होना चाहिए, किस लेवल का होना चाहिए, जमीन पे सोने पे अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है या बेड पे सोने पे, हर छोटी छोटी चीज को उन्होंने मॉनिटर किया. So this was the knowledge part. Then came from knowledge came this the whole skill part. के बाद आया कि अब इसके अलावा और क्या क्या है, अदर एस्पेक्ट्स जो नॉलेज वगैरह से रिलेटेड है. तो वो कंडीशंस हो सकते हैं, गर्मी में वो अकस्टम्ड है कि नहीं, अगर उस समय फ्रांस में बहुत ज्यादा गर्मी है तो उनको कैसे कंडीशनिंग दी जाए कि वो उसके लिए हैबिचुअल हो सके, हर चीज को तय किया गया. मगर लास्ट में एक चीज कहा गया, लास्ट में फिर कहा गया कि व्हाट इज द कोर आइडेंटिटी. इनका आइडेंटिटी क्या है, वो अपने बारे में कैसे सेल्फ इमेज रखते हैं, व्हाट दे फील लाइक, अंदर से उन्हें कैसा लगता है कि ये सब कुछ करने के बाद क्या कुछ होगा कि नहीं. And then they did research and realized that our cyclists are not, they don't have a very good self image about themselves. So they hired a psychologist, and basically how he put it across is, so by doing all these new practices, what do you think, how much percentage of changes that you will have in your performance? Then they agreed to that this might be 1 or 2% of increment. That's all. इससे ज्यादा नहीं हो सकता. Okay. Then after 1 week of study, what they did is, उन्होंने फिर उन्हें कहा, and then they told him कि how you rate your entire journey in last 1 week, and they said it was good, we have done good. Then they showed him the data and realized that their performance has increased up to 14 to 16 times percent. I mean, so their efficiency has increased now 14 to 16%, but they were only thinking about 1 or 2%. So how that happened? So that from there, this theory came up that if you start recovering or changing something, or you move towards a path where you are only have a performance increment of 1%, but this performance of 1% basically feeds in you on each and every day, and it has then more like geometric or harmonic kind of progression, if you've heard about it, that 1% becomes 101%, और फिर उसका 101% का नेक्स्ट डे अनदर 1% जो है वो और फिर 4% हो जाता है. सो दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स फीडिंग इनटू यू रेगुलरली. सो कहने का अर्थ यही है कि ये जितनी भी चीजें हैं, द मोमेंट यू रियलाइज टू चेंज योरसेल्फ फ्रॉम वन पॉइंट, तो उसका क्वांटम इफेक्ट होना शुरू हो जाता है. And by the time you reach into a month, basically you see yourself, increased up to like 50%, and you have changed in your performance by 50 or 60%. Anyways, next perspective. Naturopathy is about control. संयम स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण आधार. संयम किस तरह का? संयम मीन्स कंट्रोल, और अगर क्लासिकल टर्म में बोले तो प्रत्याहार. प्रत्याहार की देखिए यहाँ पे संयम 4 तरह के दिए गए. इंद्रियों का संयम, समय का संयम, अर्थ का संयम और विचारों का संयम. सो दिस इज मोर लाइक प्रत्याहार अगर हम कहें तो ये कहता है कि जीवन के 2 पक्ष हैं, एक तो चिंतन है और दूसरा है चरित्र. ठीक है. तो जो दुष्ट व्यक्ति है वो, तो अगर आपको इस पथ पे आगे बढ़ना है तो आपको अपने जीवन में सत्यवृत्ति का अभ्यास करना है. सत्य का पालन हो कैसे होगा भाई? तो उन्होंने कहा कि 4 तरह के संयम है, इनको आपको जीवन में उतारना है. संयम नहीं होता है तो क्या होता है? संयम अगर नहीं होगा तो दिमाग जो है वो एबनॉर्मल वे में बिहेव करता है. सो लेट मी गिव एन एग्जांपल अगेन. Another study shows that all the students जिन्होंने अपने ग्रेटिफिकेशन को प्रोलॉन्ग या डिलेड किया है, ओके, किसी भी तरह की ग्रेटिफिकेशन को अगर उन्होंने उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया या डिलेड कर दिया कि अभी नहीं मैं कल करूंगा या फिर 1 मंथ के बाद करूंगा, अगर जब भी उन्होंने ऐसा किया, these students were the one those developed, not only developed and showed much more growth in terms of academics, the financial aspects of their life, or the relationship, or anything, you name it. So कहने का अर्थ ये है कि अगर डेवलपमेंट को अगर आप इसी पैमाने पे तोलते हैं तो मोर सेल्फ
कंट्रोल यू हैव और सेल्फ रिस्ट्रेंट अगर कहें क्या, तो ये आपको बहुत अच्छे जीवन की तरफ लेके जाता है। क्योंकि आखिर ऐसा क्यों है? ये कहता है कि अगर कंट्रोल नहीं होता है तो क्या होगा। कहता है इंद्रिय संयम से तात्पर्य है जीव के चटोरे या कामुकता वाले अधिक विनाशकारी माने गए। तो ये कह रहा है कि इंद्रिय संयम का अर्थ है जो हमारे फाइव सेंसेस हैं, जैसे अच्छी खुशबू बहुत ज्यादा, ओके, यू नीड समथिंग वेरी टेस्टी, खाने के लिए बहुत अच्छा, सुनने की चाहत, अच्छा देखने की चाहत, ये सभी क्या है, सेंशुअल ग्रेटिफिकेशन की तरफ या बहुत ज्यादा यू नो अननेचुरल ईटिंग हैबिट्स की तरफ आपको लेके जाता है। और यूजुअली ये या तो आपको ज्यादा खिलाएगा या हैवी भोजन खिलाएगा। और ज्यादा और हैवी भोजन खाने के बाद क्या होगा, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाता है। और ठीक उसी तरह से जैसे बहुत ज्यादा वेट हमारे डाइजेशन को ले मारता है, ठीक उसी तरह से बहुत ज्यादा सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन जो है ये भी हमारे शरीर को अंदर से जीर्ण शीर्ण कर देता है। जीर्ण शीर्ण का अर्थ ये है कि द होल एसेंस ऑफ दिस पाथ, दिस योगिक पाथ इज इक्वानिमिटी, संतुलन, समता, है ना, स्थित प्रज्ञ, ये होना जरूरी है। सो वेदर इट्स अ, ये सिचुएशन अच्छा है या खराब है, आपका संतुलन हमेशा स्थिर रहे, बना रहे। मगर इफ यू आर प्रोन टुवर्ड्स sensual gratification a lot, what will happen? आपने कभी रिस्ट्रेन करना सीखा ही नहीं, then you have this habit that आप होल्ड नहीं कर सकते। आप कोई भी चीज तुरंत चाहिए, नहीं होगा तो पागलों की तरह व्यवहार करने लग जाएंगे, बिकॉज योर माइंड हैव बिकम अकस्टम टू दीज ग्रेटिफिकेशंस। ओके, सो आजकल जितने भी ये आप अटैक है, पैनिक अटैक है या न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं, ये सभी क्यों हो रहे हैं? ये सब इसलिए हो रहे हैं बिकॉज योर योर माइंड हैज बीन एक्टिव a lot, most of the time a lot, there is no pause to it। और ये जो कंट्रोल है, संयम है, ये आपको उसी की आदत डालता है। ओके, दूसरा है संयम, समय का संयम। जाहिर सी बात है, द टाइम, टाइम इज प्रेशियस, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टाइम देन आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। सो जब आप तरुणावस्था में हैं, किशोरावस्था में है, उस समय सेल्फ रिस्ट्रेंट बहुत जरूरी है। Right? Because then only this energy is multi-fold stronger. And if you can self-restrain during that period, then moving forward is like a piece of cake for you. Okay? तो वही कहता है हर चीज का एक समय है, पढ़ने का एक समय, प्रोफेशनल स्टडीज का एक समय। After 40 or 45, still you can get into all these new courses and learn new things. But there is a time when your mind is prepared to grasp things, to do a lot of quantitative and qualitative assessments, understand things much more practically. और शरीर में जब जान रहेगा तभी तो आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेके उसे महसूस सीख सकते हैं। बट अगर आप ओल्ड होते जाएंगे तो डेफिनेटली बॉडी उतना स्ट्रांग नहीं होगा, चीजें लिमिटेड हो जाएंगी। ओके, सो टाइम इज वेरी वेरी प्रेशियस। ओके, ओके, फिर कहता है कि अर्थ का संयम। अर्थ यानी कि अर्थ का अर्थ डेफिनेटली है पैसे से समझ लें, या अर्थ का अर्थ यहाँ पर अगर हम कहें तो आपके अर्थ का अर्थ सिर्फ पैसे से ही नहीं बल्कि आपके अपने अपने उस प्रमाद और आलस की जो आदत है जिसके कारण आप हमेशा दरिद्र बने रहते हैं। आपको करना है मगर यू डोंट हैव टू करेज टू सिट एंड फ्लिप थ्रू द बुक्स, और उतना टाइम नहीं, करने का मन ही नहीं करता। तो कहा गया कि अर्थ का अर्थ सिर्फ पैसे से ही नहीं बल्कि ऐसी चीजों से है जो कि आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और चौथा है विचार का संयम। तो विचार के संयम से तात्पर्य है कि आपका चिंतन जो है, सोचने का जो तरीका है वो अनैतिक और अननेचुरल, मैं कहूँगा इमेजिनेशन या कुछ ऐसी चीजें जो नहीं करनी चाहिए उससे जुड़ी हुई ना। ये कहता है कि पूरा का पूरा समाज जो है
ये एक विधि व्यवस्था के आधार पर चलता है, ठीक है। अब मनुष्य क्या है, मनुष्य भी इसका पार्ट है। तो कह रहे विचारों का संयम रहना बहुत ही जरूरी है, तभी आपका जो चिंतन जो है, जो माइंड पैटर्न्स हैं, जो विचार आते हैं, उनमें संतुलन बना रहेगा, मन एकाग्र रहेगा। अन्यथा क्या होगा, चंचल होने के कारण अलग अलग चित्त वृत्तियों में, हमने चित्त वृत्तियों के बारे में पढ़ा था, प्रमाण, विपर्य, निद्रा, स्मृति, और एक और था, इफ यू रिमेम्बर, पहले हमने पढ़ा है। वरना था अलग अलग चित्त वृत्तियों में मन आपका जो है वो हमेशा लगा रहे, ठीक है। इसके बाद आता है कंट्रोल। संयम क्यों स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण आता है, क्यों जरूरी है? ये बार बार यही कहता है कि जीवन में एक सामंजस्य होना चाहिए, बेसिकली एक बैलेंस होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, अतियों या बुरी आदतों या व्यसनों से दूर रहना, कोई भी चीज को ज्यादा नहीं करना। बुरी आदतें, नशा पता वगैरह है, व्यसन है, यू नो, बहुत ज्यादा सेंशुअल ग्रेटिफिकेशन है, इन सब से बहुत ज्यादा हमें दूर रहने की जरूरत है। क्यों? ये हमारे जीवनी शक्ति का शोषण करते हैं, जो हमारी लाइफ फोर्स है, जो प्राण प्रवाह है, उसको अवरुद्ध कर देते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी चीज को स्पेशली ज्यादा करते हैं, और अति खास तौर से अगर सेंशुअल ग्रेटिफिकेशन की बात करी, तो हमारे जितने भी मेजर चक्रास हैं उनको ब्लॉक कर देता है। बॉडी जो है बार बार एक ही चीज के बारे में सोचता रहता है। तो अगर आपको शरीर को सुदृढ़ बनाना है, उसको अगर आरोग्यता प्राणा करना है, तो इस शक्ति को, लाइफ फोर्स को क्षीण होने से बचाना है। तो कहा गया संयम, संयम मन, वाणी और कर्म। मन से संयम हो, वाणी से जो बोल रहे हैं वो, कर्म, तीनों का होना चाहिए। अगर नहीं नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। तो क्या करें कि बुद्धि जो है ये मन पर अंकुश लगाने में बहुत ये है, और वाणी का संयम जो है ये हमारे जो भी हम कर्म करने वाले हैं उस पर संयम लगाता है। तो इसलिए कहा गया कि वाणियों में, खास तौर से वाणी में कह रहा है कि इंद्रियों को चलायमान करने की शक्ति है, ठीक है। यानी कि ये हमारे जितने भी इंद्रियां हैं, अगर गलत बोलते हैं तो ये उनको फीड इन करता है। इसलिए कहा गया साइलेंस जो है मेडिटेशन में, रिट्रीट में एक बहुत बड़ा वेपन होता है। जस्ट बाय बीइंग साइलेंट आप एक तरह का प्रत्याहार का पालन करते हैं अपनी इंद्रियों को, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि व्यर्थ के विवाद, गाली गलौज या इस तरह के जो भाषण है इनसे दूर रहना चाहिए, बेकार में नहीं पढ़ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसका कहने का अर्थ यह है कि स्वस्थ रहने पर ही आप अपना और दूसरों का भला कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, सीधा सा, कि अगर नदी में बाढ़ आए तो पहले आप खुद बचेंगे या दूसरे को बचाएंगे? किसको बचाएंगे आप? पाठक जी, नदी में बाढ़ आएगी तो पहले आप किसको बचाएंगे, अपने आप को या दूसरे को? सर सबसे पहले तो अपने आप को। हाँ, और अगर तैरना नहीं आता हो तब? तब तो सर डूब अपने आप, जाएंगे। अपने आप को। तो वही कहा गया जी कि आप अगर अंदर से दुखी हैं तो आप अपने बगल वाले को खुश नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया जीवन में अगर आध्यात्मिक स्तर पे, यौगिक स्तर पे कभी भी आगे बढ़ना है तो परम स्वार्थी बनो। सबसे पहले परम स्वार्थी बनो। अगर स्वार्थी नहीं बनोगे तो बस दाएं बाएं देखते रहो, किसको बुरा लग जाएगा, इसको बुरा लग जाएगा, यही होता रहेगा। एंड यू विल नेवर बी एबल टू डू दिस। परम स्वार्थी बनो, बोलो कि पहले मैं। लेकिन स्वार्थी किस लिए बनना है? समता के लिए, शुद्धता के लिए, शांति के लिए। ओके, तो यहां पर कहना है नेचुरोपैथी के हिसाब से कि पहले दुर्बलता से दूर भागना है, ठीक है। दुर्बल रहेंगे तो बीमारी आपके आसपास रहेगी, और जब बीमारी जब आएगी तो क्या होगा? अब जैसे उम्र बढ़ेगी, 50, 55, 60 हो गई, तो 50, 55 में भी आपको कोई ना कोई किसी की सहारे की जरूरत पड़ेगी कि यार बेटा पानी दे दो, है ना। अब बेटा अगर प्यार से दे दिया तब तो बहुत बढ़िया, मगर कभी उसका भी मूड उखड़ गया तो क्या, क्या पापा आप भी थोड़ा वेट नहीं कर सकते? बहुत खराब लगेगा, लगेगा दिल पे छुरियां चल रही है ना। तो वही कह रहा है
कि इसलिए यही आपका वाहन है, इसके लिए परम स्वार्थी बनो, कुछ भी ऐसा ना खाओ, कुछ भी ऐसा ना पियो, कुछ भी ऐसा ना सोचो, कुछ भी ऐसा कर्म ना करो जिससे कि मेरे अंदर कोई रोग, कोई विषमता या कुछ इस तरह का कुछ भी ऐसा है जिससे कि मैं रुग्ण हूं। और अगर आप रुग्ण होना मतलब रुग्णता से स्वास्थ्य की तरफ अगर चले गए, संपूर्ण स्वास्थ्य को हासिल कर लिया, तब आप अगर दूसरों को कहेंगे कि भाई देखो ऐसा करो तो तुम भी मेरी तरह ठीक होगे, तो शोभा देगा। आपके पेट में खुद गैस बन रही है और दूसरे को आप कहें एक काम करो, पेट पे ठंडी ठंडी पट्टी लगा लो और गैस देखो नॉर्मल हो जाएगा, कोई नहीं सुनने वाला आपकी बात। So first you need to set an example, because again I said that this is a non-conventional medicine. इसमें आपको पहले खुद चलना होगा, अनुभव करना होगा कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, कैसे काम करता है, और जब होने लग गया तब आप दूसरों को बताएं ताकि आप समझा सकें। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप में से किसी ने जल नीति किया है? नॉस्ट्रल्स वाला पानी से जो होता है, किसी ने किया है क्या? कोई करता है जल नीति? नहीं। ओके, तो देखिए, जब पहली बार आप जल नीति करेंगे तो क्या होता है, आदमी बुक्स में देखता है, देखा कि आदमी खड़ा है और नाक में पानी डाल लिया, तो वो जाता है, पहले जाता है नीति पॉट लेता है, और आजकल के टाइम में ऑनलाइन ऑर्डर करता है 200-250 रुपए का। और जैसे नीति पॉट आया उसको लेता है, नॉर्मल पानी लिया और उसको नाक में डाला। जैसे नाक में डाला तो शुरू में तो थोड़ा ठंडा ठंडा लगेगा, अनइजीनेस होगी, चलो ठीक है, मुंह को खोलना भी सीख लिया, सांस को भी रेगुलेट कर लिया, मगर होगा क्या, ये पानी अब दिमाग में चढ़ेगा, और जब दिमाग में चढ़ेगा तो क्या होगा, अंदर में मिर्ची टाइप की लगेगा सर में। अब अगर आपने किसी को कहा कि अरे तुमको साइनस है, व्हाई डोंट यू डू नीति, और उसने नीति किया और उसके सर में मिर्ची लगी ऐसे ठंडे पानी के कारण, वो क्या करेगा, अगले दिन आके कहेगा अरे क्या आप कुछ भी बताते रहते हैं, बहुत सर में तकलीफ हो। तो मेरे साथ भी हुआ, तो मैंने फिर बाकी लोगों से पूछा कि भाई मुझे ऐसा होता है, मैं क्या करूँ, तो उन्होंने कहा लूक वार्म वाटर इस्तेमाल करो, और हो सके तो थोड़ा सा नमक डाल के करो। उससे क्या होता है कि ठंडे पानी से करने से कई बार बुखार आ जाता है या बदन में दर्द होनी शुरू हो जाती है अचानक से सर ठंडा होने का। अगर ल्यूकवार्म वाटर से करोगे, हल्के गर्म पानी से, गुनगुने पानी से, तो नहीं होगा। तो वो जब मैंने उससे किया तो मुझे बुखार आना या बदन दर्द होना बंद हो गया। तो अनटिल अनलेस जब तक मैंने खुद नहीं किया, मेरा खुद अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं। तो कहा गया कि ज्ञान तीन तरह के होते हैं, तीन चार तरह के, श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा, भावनामय प्रज्ञा। ठीक है, तो श्रुतिमय प्रज्ञा की सुन लिया, अच्छा ऐसा करने से, नीति करने से ठीक होता है। चिंतनमय प्रज्ञा, अरे नाक से डालने से कैसे ठीक हो जाएगा, तो साइंस का बुक पलटा, देखा कि अरे वो नेजल फेरिंग्स ऊपर जाके नॉस्ट्रल्स और ईयर के जो डक्ट्स हैं सब एक जगह मिलते हैं, है ना, और वहां जब हम नीति करते हैं तो वो वाटर जाता है तो वो क्लीन करके देता है। तो बोला ठीक है, समझ में आ गया। फिर हो गया भावनामय प्रज्ञा। भावनामय प्रज्ञा क्या है कि मैंने इसे खुद किया, एंड देन आई रियलाइज, एंड देन आई रियलाइज आफ्टर डूइंग कि ये कैसे काम करता है। तो कहा गया कि जो भावनामय प्रज्ञा, दिस इज योर ओन पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, इसको कोई झुटला नहीं सकता, एंड आपका जो भी ज्ञान हो उसको भी आप कुछ इसी तरह से ही लोगों के सामने व्यक्त करें तो आपके लिए ज्यादा उपयुक्त होगा, तभी लोग आपकी बात सुनेंगे। अन्यथा यही होगा कि ये तो बस ज्ञान देते हैं और फिर चले जाते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट वन, प्रकृति निष्पक्ष न्यायाधीश है। ओके, प्रकृति निष्पक्ष है सबके प्रति। आप लोगों को क्या लगता है, प्रकृति सही में निष्पक्ष है कि नहीं है? आपके हिसाब से क्या लगता है, अमीर आदमी के लिए प्रकृति क्या कुछ कंसेशन दे देता है और गरीब के लिए कुछ ज्यादा है क्या? आपके हिसाब से क्या लगता है, एनीवन? अमित जी, व्हाट डू यू थिंक? सब कुछ निष्पक्ष है। हाँ, कैसे, व्हाट्स योर व्यू ऑन टू, आपको क्यों लगता है?
सर जो गरीब हो अमीर हो कास्ट कोई भी क्रीड हो रिलीजन हो सबके लिए प्रकृति एक जैसा ही है। अगर वो ऑक्सीजन दे रहा है तो उसका लाभ सभी उठाएंगे, अगर वर्षा हो रही है तो उसका लाभ सभी उठाएंगे। हम्म। तो प्रकृति की तरफ से तो कोई कमी नहीं है, सबको एक जैसा ही समझ के चल रहा है। ये तो हमारे एग्जैक्टली, ऊपर है कि हम किस तरह से इसको लेते हैं। एग्जैक्टली। तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। प्रकृति क्या करती है, प्रकृति के नियम क्या है? प्रकृति के नियम को आर्य अष्टांगिक मार्ग में धर्म भी कहा गया है। धर्म क्या है? तो धर्म सार्वजनीन है। सार्वजनीन का अर्थ है जब आदमी पैदा होता है तब से ये सब पे लागू होता है और समान रूप से लागू होता है। ये नहीं देखता कि ये बच्चा है, ये पैसे वाला आदमी है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये नहीं देखता। और वो ये भी देखता है कि कौन मेरे अनुरूप काम कर रहा है। जो मेरे अनुरूप काम करेगा उसको प्रकृति क्या है, पारितोषिक देती है, उसको बेनिफिट देती है। इफ यू लिव विद नेचर, नेचर का लाइफ फोर्स आपके साथ काम करेगा। इट विल स्टार्ट टू कीप मेकिंग थिंग्स इन योर लाइफ, दोज आर, मतलब अपने आप होने लग जाते हैं बहुत सारी चीजें। समझे? आप अगर धर्म का काम करने चलेंगे कभी भी तो देखेंगे अचानक ही कोई मिल गया, है ना। यू आर लुकिंग फॉर फंडिंग, किसी ने कहा आई वाज लुकिंग फॉर सम वेंचर, कहाँ से आपको कोई सहयोग आ जाएगा। आप किसी काम में अटके हुए हैं, अचानक कोई ऐसा मिल जाएगा जो व्हाई डोंट यू डू यू नीड एनी हेल्प और समथिंग। तो ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो प्रकृति का काम ही यही है। आप अगर धर्म का पालन करेंगे, धर्म क्या है? तो सच्चाई का जीवन जियो, झूठ मत बोलो, चोरी नहीं करो, है ना, व्यभिचार नहीं करो, है ना, कम से कम बोलो और प्रकृति के नियमों का पालन करो। प्रकृति के नियम क्या है? तो बारिश होती है तो बारिश होगी तो गीला करेगी, है ना। तो गीला हो रहे हैं तो ठीक है, गीला हो लिया, कोई दिक्कत नहीं, जाके शरीर पहुंच लिया। अब गीले में ही अगर पड़े रहेंगे तो क्या होगा? तो बहुत ज्यादा देर गीला होंगे तो वो उसका असर दिखाएगा। ठीक उसी तरह से सूर्य का ताप जो है क्या है, कीटाणुओं को मारता है। मगर बहुत ज्यादा ताप है और आप वहां पे बैठे हुए हैं तो क्या हो, या तो आप उस ताप से बचने का प्रयास कर लें, या फिर वो उस ताप में रहते रहते प्रकृति आपको ऐसा बना देगी कि आपको ताप ही लगना, गर्मी लगनी ही कम हो जाएगी। तो प्रकृति जो है बहुत निष्पक्ष है। जो उसके साथ उसके हिसाब से काम करेगा उसको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, ना? और जो उसके विपरीत रहेगा उसको दंड मिलना शुरू हो जाएगा। आपने क्रोध किया, आपका बीपी बढ़ा। अब बीपी आपका बढ़ा तो गर्मी अंदर किसकी आएगी? मेरे अंदर नहीं, आप ही के अंदर। और गर्मी वो आएगी तो जाएगी कहाँ? कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो सबसे दिल में जाके अटक गई, हार्ट के पेशेंट हो गए लेवल, है ना। खूब मसालेदार भोजन खाया, खट्टा तीखा दबा के खाया, बहुत बाइल जूस निकला, इतना खट्टा खाया बहुत बाइल जूस निकला, इतना पित्त निकला कि रक्त में पित्त पित्त हो गया, जॉन्डिस हो गया। प्रकृति से विमुख हुए तो आपको दंड मिल गया। अब वही पेट बना है एसिड से भाई, उसमें पोषक तत्वों से आपने भरना शुरू कर दिया, अनाज पे कम रहे, हरी चीजों पे, फल के रस पे गए, तो प्रकृति क्या करेगी? पारितोषिक देगी, अंदर तरावट बनेगा, एसिड नॉर्मल हो जाए। एसिड नॉर्मल होगा तो बॉडी का जो पीएच लेवल है मेंटेन हो जाएगा। पीएच लेवल मेंटेन होगा तो क्या होगा, है ना, फीवर वगैरह ऐसे जो भी रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे, आपका प्लेटलेट्स लेवल मेंटेन हो जाएगा, सब कुछ होने लगेगा अपने आप हो जाएगा। बीइंग a human being, our responsibility is to honor the rules and regulations set by the mother nature. हम इसे फॉलो करेंगे और इसके साथ साथ हर काम, चाहे वो हमारा कर्म हो, हमारे कोई भी सिद्धांत हो, कुछ भी हो, उसका मेन मकसद ये हो कि बॉडी में बहुत ज्यादा प्राण वायु को हम अर्जित कर पाए। ठीक है ना। हमारे डे टू डे लाइफ में प्राणवायु जो है वो ज्यादा वेस्ट ना हो कि हमारे बॉडी में इकट्ठा हो, लाइफ फोर्स जो है वो ज्यादा कंडेंस्ड हो। भोजन ऐसा जो हो जो कि आसानी से पचे, गंदी हवा
या उचित मौसम के अनुरूप ऐसी जो भी बहुत ज्यादा ठंडी गर्म चीजें हैं, इन सभी चीजों से हम बचें। और अगर हम इन सब को फॉलो करेंगे तो हमें अच्छा परिणाम मिलेगा, और अगर हम इन्हें फॉलो नहीं मिलेंगे करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले आलस्य आएगा बॉडी में। आलस आएगा, कमजोरी होगी। आलस कमजोरी क्यों आता है? बॉडी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डाउन होता है, मसल्स का जो मास है वो बॉडी फीड इन करना शुरू कर देता है, ठीक है। और उसी के कारण आप देखेंगे कि बॉडी में बहुत ज्यादा आलस कमजोरी होती है, और फिर भूख कम लगने लगेगा, ठीक है, फिर मन नहीं लगेगा। तो ये सभी चीजें जो है ये बेसिकली इंडिकेटिव है कि अब आपका बॉडी जो है वो बैलेंस हो रहा है आगे चल के। तो अगर हम इन सभी चीजों को ध्यान रखेंगे तो हम बहुत आसानी से अपने आप को ढाल सकते हैं। okay? दूसरा है परा प्रकृति का अस्तित्व। परा और अपरा दोनों को आप थोड़ा सा समझ लें। प्रकृति के दो कहें तो दो बेसिकली रूप हैं। अपरा वह प्रकृति है जो 5 तत्वों से बनी हुई है, सो अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, और जो इंद्रिय चेतना से अनुभव की जा सकती है। तो इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं। सो एनीथिंग दैट यू कैन सी, टच और फील बाय द 5 सेंसेस, उसे कहा गया कि वह अपरा प्रकृति, ठीक है। तो भौतिक जगत में विज्ञान में पराशक्ति और रमणीय चेतना की खोज करते मानती है कि प्रकृति इसे ज्ञात करने की अत्यंत आवश्यक है ना। अब ये पराशक्ति क्या है? तो पराशक्ति बेसिकली जो लाइफ फोर्स का जो हमारा एग्जिस्टेंस है, ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है, जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, बट जो सूक्ष्म जगत की ओर हमें लेके जाता है। अच्छा, इस सटल रियल को बहुत सारे लोग, ठीक है, पहले नहीं मानते थे, बट नाउ स्लोली ग्रेजुअली दे हैव स्टार्टेड टू रियलाइज कि दे कांट डिनाई दिस फैक्ट ऑल टुगेदर, ठीक है। बट फिर भी इसका कहना यह है कि अब इसे समझने के लिए अलग अलग तरीके और अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज यूज की जा रही हैं ताकि हम इन सभी चीजों को भी समझ सके कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे। तो क्वांटम फिजिक्स हमारे पास है, ये अलग अलग तरह के फिजिक्स के ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं, नियम हैं जो अब अलग ही लेवल पे बात कर रहा है। तो कहने का अर्थ है कि आज जैसे साइंस में न्यूक्लियर फोर्स है, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है, ये सभी चीजों को पहले महसूस नहीं किया जा सकता था, बट नाउ अब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से आप इनको देख सकते हैं, इनको फील कर सकते हैं कि इनका क्या इम्पैक्ट है, राइट। ठीक उसी तरह से ये जो पराशक्तियां हैं या जो फिजिकल रिल्म के बाहर के जो हैं, इनको भी आप अलग अलग प्रोसेस से, अलग अलग एक्सपेरिमेंट से आप इनको समझने की कोशिश कर सकते हैं। okay? अब ये कहता है कि ये सब कैसे एग्जिस्ट करता है, तो ये कहता है ये सारा का सारा जो हमारा अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है ना, और चेतन मन जो है, जो कॉन्शियस माइंड है, ये बेसिकली इन दोनों के आपस में मिला जुला गेम है, ठीक है। हमारा जो पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस जो है शुरू पर से बहुत ज्यादा फिजिकल दिखाई देता है, बट जैसे जैसे हम जाते हैं माइंड के डीपर लेयर्स में, तो हमें पता चलता है हमारे जितने भी एनर्जी सेंटर्स हैं, जितने भी ऐसे रिसोर्सेज हैं जहां से कि बहुत सारे ऐसी ऊर्जाओं को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर ऑल ऑफ आप में से किसी ने थर्ड आई चक्र या जो हमारा है, ठीक है, इसके बारे में अगर सुना हो, तो इसको आप ऐसे महसूस तो नहीं कर सकते, मगर कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं जिससे कि आप इसको यू कैन स्टार्ट फीलिंग, and there are some psychedelic drugs also, those are available, that helps you to have this experience in a very short span of time. तो पहले इसे कर पाना बहुत मुश्किल था, but due to advancement in the science and everything, now it has become much more easier. So there are different kind of mushrooms, those are available now. We have iboga,
we have ayahuasca, we have definitely shrooms तो खैर के साथ साथ then we have marijuana, you know. So ये सभी चीजों को अब आज के समय में लोग कहीं ना कहीं अब इस्तेमाल करके देखने लगे हैं, और अब ये बात समझ में आती है कि इन सभी चीजों में हमारा जो माइंड है वो कितना बेसिकली स्ट्रांग है, कितना एनर्जी होल्ड करता है। क्योंकि अगर माइंड फैक्टर को अगर हटा दें तो हमारा बॉडी क्या है, जस्ट अ फिजिकल स्ट्रक्चर। बगैर इसके संयोग से ही हम इस पूरे फिजिकल रियम पे, फिजिकल वर्ल्ड पे, फिजिकल मसल्स जो स्ट्रक्चर है इस पे फुल कंट्रोल स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कि इसलिए नेचुरोपैथी में योगाभ्यास को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। ओके, और लास्ट में आता है पंचकोश का सिद्धांत, यानी देयर आर 5 कोशेस। सो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश। एंड एट द सेंटर ऑफ we have the atma, the existence of atma. So gross body sensation, so gross body is the outer layer। ये मैंने शुरू में भी आपको बताया है, I hope so, when we were talking about सांख्य दर्शन या योग की परिभाषा में बताया था कि बाहरी आवरण जो है अन्नमय कोश, हम बस यहीं तक सीमित रहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है अभी तक जो है वो बस पहुंच यहीं तक है, ग्रॉस बॉडी। और ये ग्रॉस बॉडी बस ये वाला पार्ट है ना, जो बाहर से। इसके बाद सटल बॉडी है। सटल बॉडी प्राणमय कोश, मनोमय कोश एंड विज्ञानमय कोश। तो यहां से लेके यहां तक जो ये 3 लेवल है, यहां तक जो है ये सटल रिम। सटल रिम क्या हो सकता है? सो सटल रिम बेसिकली इट कुड बी अ शिफ्ट ऑफ योर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वेरी ग्रॉस टू समथिंग सटलर। तो जो लोग ध्यान वगैरह में जाते हैं तो उनका अलग अलग अनुभव है। किसी को हम लोग जब माइंडफुल मेडिटेशन की बात करते हैं देन वी ऑलवेज स्पीक अबाउट कि जब सटल ग्रॉस सेंसेशन महसूस होने लगते हैं तो सटल को देखो। सटल क्या हो सकता है? अचानक से चींटी चलने की तरह, या खुजली आने लग जाए अचानक से, ये सटल सेंसेशन है। या कुछ उड़ने की तरह फ्लटरिंग महसूस हो जाए, या वाइब्रेशंस होने लग जाए अचानक से, या ब्लड का फ्लो पता चलने लगता है। दीज आर ऑल वेरी सटल सेंसेशंस, राइट। किसी को कान में रिंगिंग होना शुरू हो जाता है, जिसे टेनिटस कहा गया। किसी को ही अंतर्नाद भी बोला गया है अलग अलग धर्म ग्रंथों में। जब हमारा वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बहुत ग्रॉस से हल्का सा सटल या बाउंड्री लाइन जो कहें उसको क्रॉस करता है, so during that period you feel this intense ringing and some people have कि ये रिंगिंग बहुत 10-10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक चलती रहती है। कभी कभी एनर्जी शिफ्ट होता है, फुल मून है, अमावस्या है, उस समय अचानक से कान में होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज फॉर ऑल द साधक्स दोज आर वेरी मच इनटू माइंडफुल प्रैक्टिसेस और समथिंग लाइक दिस। तो ये होता है। तो ये प्राणमय कोश तो हो गया एनर्जी फ्लो। मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश जो है ये इससे अंदर के जो लेवल्स हैं वो है। ठीक है, तो प्राणमय कोश यानी प्राण का प्रवाह शरीर में कहीं भी कुछ हो रहा है तो वो पता होगा। ठीक है, और विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये अंदर के ऐसे कोशिश हैं जहाँ पे कि मैं अगर ये कहूँ तो आर्य अष्टांगिक मार्ग में से कहा गया कि भंग की अवधारणा है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा बॉडी 99.99% स्पेस है, राइट। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सामने में लोहा का रॉड है तो दैट इज ऑल्सो 99.99% स्पेस। माई हैंड इज ऑल्सो 99.99% स्पेस। तो मैं अपना अगर हाथ लोहे के रॉड पे मारूंगा तो वो स्पेस में से पार हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाथ टूट जाएगा, हड्डी टूट जाएगी। क्यों? बिकॉज दिस एग्जिस्टेंस जो है हमारा वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करता है, राइट। मगर इंटेंस मेडिटेशन में जब भी आप जाते हैं तो शुरू में छोटे छोटे ऐसे स्पंदन आते हैं, फिर कान में कुछ सुनाई हो सकता है, फिर ऐसी अवस्था आती है जब पूरा के पूरे शरीर का घनत्व खत्म हो जाता है और बस सिर्फ तरंगे ही तरंगे। मतलब आप अपने शरीर के ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आपको उस शरीर को स्कैनिंग करने में पहले अगर जैसे यूजुअली हम करते हैं तो 10 से 15 मिनट लगते हैं, अगर अचानक से आप 1 से 2 सेकंड या 5 सेकंड में पूरे शरीर को महसूस करने लग जाते हैं, योर एंटायर बॉडी बिकम्स सो लाइट कि पूरा जो ग्रॉस पार्ट है वो डिसॉल्व हो जाता है। इसे भंग की अवस्था कही जाती है। तो ये जो सटल रियल्म है पूरा का पूरा उस अवस्था तक को
दर्शाता है। देन वी हैव द कैजुअल बॉडी। कैजुअल बॉडी इज व्हाट? आनंदमय, जहाँ पे परम आनंद है। ये ऐसा होता है जब आप भंग स्थिति में जाते हैं तो अचानक से आपको दिल में बहुत ज्यादा प्रेम, कंपैशन, लव एंड एवरीथिंग एकदम नदी की धारा की तरह बहने लगेगी। आपको अपने दुश्मन में भी मतलब इसी तरह की फीलिंग्स आएंगी कि अच्छा कोई बात नहीं, ये बेचारा, इसको नहीं पता है जो मुझे पता है, इसको नहीं पता इसलिए इसने ऐसा किया, ओ फॉरगिव हिम। क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि आप बुद्धू हैं, इसका मतलब ये ना यू हैव बिकम सो सेल्फिश। आप इतने सेल्फिश हो चुके हैं। सेल्फिश क्यों बोल रहा हूँ इसको समझिए। मैंने क्या कहा कि जो पहले अपने आप को सुदृढ़ करेगा वो ही दूसरों को तार सकता है ना। ठीक उसी तरह से आपको पता है कि अगर मैं किसी से राग या द्वेष करूंगा तो मेरे मन में गांठ बनेगी उसके लिए, तो वैसे मेरा कर्म हो जाएगा, मेरे संस्कार बन जाएंगे, और कहीं संस्कार वही मरते वक्त अगर प्रगाढ़ हो गया तो मुझे दूसरे जन्म में ठेल देगा। तो मैं इतना सेल्फिश हूं अपने बारे में कि मैं संस्कार बनने ही नहीं देना चाहता। तो मैं कहता हूँ कि अरे इस बेचारे को नॉलेज नहीं है, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग, ये इस तरह के कर्म कर रहा है। एंड ये रिक्वेस्ट, भगवान करे इसको अपने कर्मों का फल ना मिले, और प्रार्थना करके अच्छा ठीक है माफ किया, देन यू मूव ऑन। Okay, so you become so selfish. Spiritual path में, yogic path में, if you have to move forward, you have to be absolutely selfish. ठीक है। और खैर, तो अब मेरी तरफ से थोड़ा सा ज्ञान, और तीन चीज हो सकती है स्पिरिचुअल रेल में आप जाने के लिए या स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ेंगे तो तीन चीज हो सकती है। आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, ठीक है। तो जो स्पिरिचुअली इंटैंगल्ड होंगे उनसे आपकी बनेगी, उनसे आपका मन चित्त वगैरह जो है वो बैठेगा, बात करने में अच्छा लगेगा। मगर जिनसे अच्छा नहीं लगेगा तो क्या कर सकते हैं? पहली चीज, अपने आप को बदलिए। सो द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू कंडीशन योरसेल्फ इन सच अ वे कि ये ऐसा ही है ना। ये सबसे अच्छा तरीका, अपने आप को कंडीशन कर लो, सबसे बढ़िया। अच्छा नहीं हो पाए तो थोड़ा सा उसको कंडीशन करके देख लो, क्या पता भगवत कृपा हो जाए, है ना, डिवाइन गाइडेंस आ जाए, थोड़ा वो बदल जाए तो थोड़ा मेरे लिए भी आसान हो जाए। और तीसरा मार्ग है, बहुत ही स्ट्रांग है, समझे? यही सन्यासियों का मार्ग है। क्या? कि अगर ना वो बदले और ना तुम अपने आप को बदल पाओ तो क्या करो? चुपचाप उस जगह से बाहर हट जाओ, उस जगह से, उस व्यक्ति से ही दूर हट जाओ, काम खत्म। क्योंकि अगर आपका मन, चित्त, शरीर का बैलेंस गया तो सब कुछ गया। इसी को तो बचा के रखना है ना। तो परम स्वार्थी बनो, अपनी काया को निरोगी बनाओ, भोजन से लेके आहार विचार सब कुछ प्रकृति के अनुरूप हो, धर्म के अनुरूप हो, ठीक है। और शरीर में ऊर्जा को क्षय न करके इसको संग्रहित करो, ब्रह्मचर्य का पालन हो सके तो फॉलो करो। संतान उत्पत्ति ही एकमात्र अगर ध्येय होना चाहिए हमारा, इन दिस गृहस्थ आश्रम में भी कहा गया कि सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन जो है उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ फॉर, अब सिर्फ अपनी फैमिली को बढ़ाने के लिए ही किया जाए तो ही ज्यादा बेहतर है। तो ऊर्जा का संबंधन करो, ऊर्जा को बढ़ाओ, भोजन ऐसा खाओ जो शरीर को पोषण दे, ना कि शरीर की ऊर्जा उस खाने को पचाने में लगी जाए। तो इन सभी नियमों का पालन करो और देखिए आप कैसे उछलते गाते हुए स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। थोड़ी दिक्कतें तो आती हैं, सबको आती हैं, मगर हाँ ये है कि आपको अंतर अपने आप में स्पष्ट नजर आएगा। और स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी नहीं है कि ये अचानक से हो गया और एक बार खत्म। कई लोग कहते हैं ना कि कुंडली जाग गई हमारी, त्रिनेत्र खुल गया तो अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। त्रिनेत्र खुल भी गया तो वो खुला रहे या अच्छे स्तर पे बना रहे उसके लिए निरंतर प्रयास चाहिए। हाँ थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि अब आपको एक, जैसे मैंने कहा ना, भावना में पड़ गया, अपना एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो आपको पता है कि ऐसे करने से ये होता है तो मैं क्यों ना करूं। मगर किसी को अगर टेस्ट ही नहीं है तो बेचारा क्यों करे, उसको तो पता भी नहीं है किससे क्या होता है। सो दैट्स इट फॉर द डे मेरी तरफ से। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच।
for joining. धन्यवाद सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। Good night. Take care. Shubh गुड नाइट सर। Good night.